اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس کی تلاوت ماہ رمضان میں کثرت سے کی جاتی ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کو سن 2 ہجری ماہ شعبان میں نازل فرمایا اور پھر اسی سال یعنی 2 ہجری میں ہی ماہ رمضان سے رسول کی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد مومنین نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ یہ آیت پروردگار نے نازل کی اور مومنین پر روزہ فرض ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کے ابتدائی فقرے کے سلسلے میں کہ جو یا ایہا الذین آمنوا ہیں ارشاد فرماتے ہیں لذۃ ما فی الندى ازال تعب العبادۃ والعنا۔ یہ جو اللہ نے ہمیں مورد خطاب قرار دیا، یہ جو اللہ نے ہم کو پکارا، یہ جو اللہ نے ہمیں آواز دی، یہ جو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اس اللہ کے پکارنے نے، اس اللہ کے پکارنے میں اتنی لذت ہے، اتنی شیرینی ہے، اتنی مٹھاس پائی جاتی ہے کہ ازال تعب العبادۃ والعنا۔ اس خطاب کے، اس پکارنے کے، اس یا ایھا الذین آمنو کہنے سے عبادت میں پائے جانے والی تشنگی، عبادت میں پائی جانے والی مشکل، عبادت میں پائی جانے والی تھوڑی سی سختی جو تھی اس کو بھی اس ندا نے زائل کر دیا، ختم کر دیا مولا کے فرمان کے مطابق۔ یعنی مولا کہتے ہیں اللہ نے اللہ ہو کر، اس ذات نے کہ جو سب سے بے نیاز ہے، اس ذات نے کہ جو ذات عین بے نیازی ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں مورد خطاب قرار دے دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ مولا ہمیں راہ عرفان اور راہ معرفت بتا رہے ہیں۔ جو لوگ اس راستے پر چلے ہوئے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اللہ اللہ ہو کر ہمیں خطاب کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں لذۃ ما فی الندى ازال تعب العبادۃ والعنا۔ جو عبادت میں، جو اس ندا میں، جو اس آواز میں لذت پائی جاتی ہے، اس نے عبادت میں پائی جانے والی مشکل کو ظاہر کر دیا۔ پروردگار عالم نے مومنین پر روزہ فرض کیا اور کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا۔ پروردگار عالم نے یہاں جب روزہ فرض کر رہا تھا تو دوسری امتوں کا بھی حوالہ دیا، گزشتہ لوگوں کا بھی حوالہ دیا، یعنی تم سے پہلے بھی اس روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ یہیں پر نہیں رکھا پروردگار نماز کی طرح، جیسے نماز کی متعدد آیات میں پروردگار عالم نے اقیم الصلاۃ ڈائریکٹ کہا تھا کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، ڈائریکٹ کہا تھا، ایسے ہی ڈائریکٹ کہہ دیتا پروردگار یا ایھا الذین آمنوا صوموا،
ऐ ईमान लाने वालों रोज़ा रखो, लेकिन अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं कहा, बल्कि कहा उसी तरह फ़र्ज़ किया गया कि जैसे गुज़िश्ता उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था। ये परवरदिगार ने हमारे गुज़िश्ता लोगों को, बुज़ुर्गों का हवाला क्यों दिया? शायद अल्लाह ये बताना चाहता हो कि आबा व अजदाद गुज़िश्ता लोगों की सारी बातें ख़राब नहीं होती, बल्कि हमें ये देखना है कहाँ कहाँ पर वो हुक्म इलाही के मुताबिक थे, वहाँ वहाँ उनकी बनाई हुई तरीक़ों, रस्म और रिवाज पर हम चल सकते हैं, और जहाँ जहाँ नाऊज़ु बिल्लाह उनकी बनाई हुई रस्म व रिवाज हुक्म इलाही या हुक्म रसूल या हुक्म इमाम के ख़िलाफ़ हों, उस पर हमें अमल नहीं करना। इसीलिए शायद नबी मुकर्रम इस्लाम ने इरशाद फरमाया था, मन सन्ना सुन्नतन हसना, कि जो सुन्नत हसना का बीज बोए, जो सुन्नत हसना को ईजाद करे, जो सुन्नत हसना को राइज करे माशरे में, उस सुन्नत हसना के राइज करने वाले को खुद उस सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब मिलेगा, और जो जो उस पर अमल करता जाएगा उसका भी उसको सवाब मिलता चला जाएगा। यानी दो सवाब उसको मिलेंगे, एक तो खुद उसने सुन्नत हसना पर अमल किया, फिर दूसरों के लिए उसने वो सुन्नत बनाई, इसका भी जितने लोग अमल करते चले जाएंगे उनका भी सवाब उसको मिलता जाएगा, बग़ैर उनके सवाब के कम किए हुए। यानी क्या मतलब? यानी ये रसूल की हदीस और कुरान मजीद की आयत दोनों ही चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि अगर बुज़ुर्गों की बातें अल्लाह, रसूल और इमाम के हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो तो हमें उनकी बातों को मानना चाहिए, उनकी बात के सामने हमें सर तस्लीम खम कर देना चाहिए। तो अल्लाह ने बुज़ुर्गों का हवाला देते हुए, गुज़िश्ता उम्मतों का हवाला देते हुए हमें ये हुक्म दिया कि जिस तरह उन पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था तुम पर भी फ़र्ज़ किया गया। जब फ़र्ज़ किया गया यानी रोज़ा रखो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्यों फ़र्ज़ किया? ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ताकि तुम अच्छे आदमी बन जाओ। यानी परवरदिगार रोज़े के ज़रिए एक टारगेट तक पहुँचाना चाहता है, वो क्या है? मुत्तक़ी बनना, एक अच्छा आदमी बनना, एक बेहतरीन समाज में शख्स होना, यह अल्लाह हमसे चाहता है, और रोज़ा वहाँ तक पहुँचाएगा, ये गारंटी है, परवरदिगार कह रहा है। लेकिन शायद की लफ्ज़ इस्तेमाल करके कह रहा है। ये शायद की लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा है? लअल्लकुम, शायद तुम, यानी रोज़े में ये कमी नहीं है कि हमें मुत्तकी ना बनाए, हमें अच्छा आदमी ना बनाए, कि शायद इसलिए रोज़ा कुछ गड़बड़ हो जाए ना। अब मतलब यह है कि अगर हम रोज़े को रोज़े ही की तरह, जिस तरह से अल्लाह ने फ़र्ज़ किया, जिस तरह से रसूल ने रखा, जिस तरह से आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने रखा, अगर हम भी उन्हीं शराइत और रोज़ों के तकाज़े के मुताबिक रोज़े को रख देंगे तो हमें मुत्तकी बना देगा। लेकिन चूँकि इंसान से ये इम्कान पाया जाता था कि उसका रोज़ा वो ना हो जैसा अल्लाह चाहता है, उसका रोज़ा वो ना हो जैसे नबी चाहते थे, उसका रोज़ा वो ना हो जैसे इमाम चाहते हैं, तो परवरदिगार ने शायद की लफ्ज़ इस्तेमाल की। लेकिन अगर हम वही रोज़ा रख दें जो अल्लाह की चाहत है, जो रसूल की चाहत है, जैसा नबी ने रखा, जैसा इमामों ने रखा, जैसा आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने रखा, तो यकीनन ये रोज़ा हमें तक़वी की मंजिलों तक पहुँचाएगा। तो बेहतरीन काम, बेहतरीन चीज़ रोज़े के नतीजे में जो हमें मिलने वाली होती है वो है तक़वा इलाही, यानी अल्लाह का मुत्तकी बंदा बन जाना। रोज़ा हमें यहाँ तक पहुँचा देता है, अच्छा आदमी बना देता है, अच्छा आदमी बनाएगा। और कैसे बनाएगा अच्छा आदमी? देखें, जब हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखा हमने, रोज़ा सुबह में रखा, सुबह उठे, अभी आँखें खोली थी, देखा कि हमारे घर में बच्चे कुछ खा रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम नहीं खाएंगे। क्यों? इसलिए कि हम रोज़ा हैं, इसलिए कि हम रोज़ा हैं। हमने नहीं खाया, बाहर निकले, चाय के होटल से हमारा गुज़र हुआ, बेहतरीन चाय की खुशबू आ रही थी। जब भी कल
परसों तक जब भी हम गुजरते थे रोज़ा रखने से पहले, जब भी गुजरते थे 1 कप चाय पी लेते थे, लेकिन आज हमने रोज़ा होने की वजह से वो 1 कप चाय का नहीं पिया। होटल तक पहुँचे, खाना बेहतरीन खुशबू आ रही थी, या घर में इफ्तार के वक्त बेहतरीन इफ्तार बन रहा था, या दोपहर में बच्चों के लिए माएँ कुछ बना रही थीं, या ऐसे लोगों के लिए कि जो रोज़ा नहीं रख सकते या उनके लिए रोज़ा रखना गलत है, ऐसे लोगों के लिए लेकिन हमने क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए कि हम रोज़ा हैं। यानी हमने वो काम के जो रोज़े के बरखिलाफ़ था, रोज़े होने की वजह से वो अंजाम नहीं दिया। यानी क्या मतलब? परवरदिगार ने हमें ट्रेनिंग देना शुरू कर दी कि जहाँ जहाँ अल्लाह मना करता जाए वहाँ वहाँ रुकते जाओ, जहाँ जहाँ अल्लाह कहता जाए वहाँ वहाँ काम करते जाओ। जब जब अल्लाह काम करने को कहे, यही अल्लाह दिन में खाने को मना कर रहा है, यही खाना इफ्तार के बाद या इफ्तार के वक्त हमारे लिए हलाल हो जाता है। यही नहीं कि हम ये सोचें इसमें कोई ऐब पाया जाता होगा, इसमें कोई बुराई पाई जाती होगी इसलिए अल्लाह मना कर रहा है। नहीं, रोज़े में उसने हलाल चीज़ से रोक दिया, अल्लाह ने मना कर दिया, लेकिन हम रुक गए। तो अल्लाह ने हमें ये देखना है किस किस चीज़ से और कहाँ कहाँ किस किस ज़माने में मना किया है। हमें उस ज़माने में उस चीज़ से और उस ज़मीन पर, उस जगह पर हमें रुकना होगा। अगर हम ऐसी आदतें डाल लें, रोज़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें और हमारी आदत ये पड़ जाए कि हमें हुक्म इलाही के मुताबिक चलना है, तो हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार कर, बेहतरीन इमाम का सिपाही बनकर, बेहतरीन इमाम का नासिर व मददगार बनकर इमाम की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी आदत ये नहीं पड़ी, हम इस बात के आदी नहीं हुए कि हमें हुक्म इमाम के सामने, हुक्म रसूल के सामने, हुक्म इलाही के सामने झुकना है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। इस रोज़े के सदक़े में हमें कोशिश ये करना है कि जिस तरह से हम रोज़े में अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से रुकते हैं, इसी तरह पूरी ज़िंदगी जहाँ जहाँ अल्लाह ने मना किया हो वहाँ वहाँ अपने आप को रोक कर इमाम का बेहतरीन सिपाही बनने की कोशिश करें। परवरदिगार से दुआ है कि इस रोज़े के सदक़े में हमें वो ऐसा ट्रेंड कर दे कि जहाँ जहाँ हमारा इमाम मासूम, इमाम गायब, 12वां इमाम हमें कोई काम अंजाम देने के लिए कहे, वहाँ हम कोताही ना करें, और जहाँ वो हमें रोकें वहाँ पर हम न जाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।